Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Sri Prem Jyotish. Hello Premji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us in the studio because today is a very interesting topic. It is impacting a lot of people all across the world. It is the planetary positions of Rahu, Jupiter, Saturn, and Venus, and how are they combining together? How are they making such an impact in everyone's life all over the world? So let's find out for the first planetary position, Rahu. So Premji, how is Rahu impacting everyone's life? See, देखिए, Rahu has recently changed in May. पहले राहु Pisces में था 1.5 year के लिए. जी. तो Pisces में जब राहु जाता है, Pisces is governed by Jupiter. Jupiter में राहु जाएगा या उसके साइन में जाएगा तो वो चंडाल योग क्रिएट करता है. And which is one of the most toughest time for the world जब से वो राहु जुपिटर में एंटर किया. एंड अभी मई 28 के बाद से राहु हैज़ मूव्ड इनटू एक्वेरियस. एक्वेरियस इज गवर्न बाय द सैटर्न, शनि के उसमें चला गया. तो जिससे वो बेसिकली चीज़ों को रीसेट करना शुरू कर देता है. बिकॉज इट्स ए प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, वॉर, यू नो, ग्लोबल डिजीज़ को भी क्रिएट करता है. बिकॉज जुपिटर इज़ द राहु क्रिएट्स इट एंड जुपिटर स्प्रेड्स इट अगर वो ख़राब हो जाए. एंड वो सारी नेगेटिव चीज़ें एक स्केयर करके गया. अभी इट इज़ मूव टू द सजिटेरियस, अभी राहु हैज़ मूव टू एक्वेरियस. बट क्या होता है, डिग्रीज होती हैं प्लैनेट्स की. तो राहु अपनी 30 डिग्री में मूव करता है, देन स्लोली इट स्टार्ट कमिंग डाउन. फिर उसके बाद वो 0 पे हो जाता है, देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट हाउस. तो सितंबर तक वो अपने, जिसे कहते हैं जी, ही इज़ टेकिंग ओवर शनि के ऊपर. तो सितंबर तक चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे दिखती जाएंगी, बट एट द एंड देयर विल बी अ सोल्यूशन. बहुत सारा पीस फिर आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी लोगों की लाइफ के अंदर. सो ये राहु का इम्पैक्ट जो अभी हुआ है. बट एट द सेम टाइम ये अगर अनफॉर्चुनेटली यही राहु अगर ज़्यादा देर रह जाता पाइसिस के अंदर या, तो फिर ये जिस तरह से हम 2020 में वी सीन that the massive health scare destruction and, of COVID life, and life, तो फिर वो वैसे ही करता. एंड जुपिटर जो है बेसिकली हमारे, जुपिटर इज एयर, हवा, एविएशन. जुपिटर का चेंज करना मरकरी में इज ऑल्सो नॉट ए पॉजिटिव थिंग टू. बुध में आ गया जेमिनाई में, टॉरस से निकल के को तो कहते हैं अपना जहर देता है. तो इसीलिए अनफोन्स जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो पूरी दुनिया में, सो जो कि अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ए ग्रेट टाइम. So Premji, now that Rahu and Jupiter you explained, they are not very happy planets to make people's life nice and easy currently till about September. So what is the impact that people are facing and how can they come over that impact? Some remedies that they can do? देखिए, फॉर इन ऑर्डर टू बेसिकली रिड्यूस द राहु इल इफेक्ट, आप जाके फूड डोनेट करो, गो टू होमलेस शेल्टर, डोनेट फूड टू द पीपल दे डोंट हैव द फूड टू ईट. और आप जाके, जुपिटर इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू रिलीजियस वर्क टू. जो अभी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिसको भी थर्सडे के दिन यू शुड गो टू ए टेम्पल, मॉस्क और एनीवेयर टू डू ए सेवा, सम सॉर्ट ऑफ ए थिंग, तो जाके. And that will give you a very, very positive impact too. And also you can donate 1/10 of जो split चने की जो दाल होती है to any religious place, basically for Jupiter, to see more peace and more positivity. Thank you, Premji. So hope all of you also understood. Rahu and Jupiter are very impactful. They don't have such a power of negativity, but whatever power they have, it is kind of left over. You need to work hard and do the remedies that Premji's mentioned. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries?
एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और जिसकी वजह से आप काफ़ी अलर्ट भी रहेंगे। आपको काफ़ी सारा गेन होगा, बेनिफिट्स होंगे जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं पास के अंदर। कुछ लोग हैं जो ट्रैवल भी करेंगे अपने काम से रिलेटेड। अनएक्सपेक्टेड जॉब ट्रांसफ़र भी हो सकती है कुछ लोगों की। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, आप इंजॉय करेंगे अच्छे रिजल्ट्स, जिसकी वजह से पैसे को भी आप रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा किसी उल्टी सीधी चीज़ों के ऊपर, और टेम्पर को भी बिल्कुल भी लूज़ मत करिएगा। थोड़ा रियलिस्टिक रहिएगा इस वीक के अंदर। अपने पैसे को प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर खर्चा करिएगा। हेल्थ आप लोगों की मॉडरेट रहेगी। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, जो वीक है इज़ गोइंग टू बी द वेरी गुड वन आप लोगों के लिए। काफ़ी बिजी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे इस वीक के अंदर, जिसकी वजह से आप अच्छे रिजल्ट्स भी देखेंगे और आप अच्छा नाम भी सिक्योर करेंगे जो काम आपने पास्ट में किया है। फाइनेंशियल प्रोग्रेस आप लोगों की स्टेबल रहेगी थ्रू आउट इस वीक के अंदर। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जो भी आप मेजर डिसीजन लेंगे इस वीक के अंदर वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। आप बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। आपकी सारी एबिलिटीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा। फाइनेंशियल जो प्रोग्रेस है वो थ्रू आउट दिस वीक के अंदर काफ़ी अच्छी रहेगी। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रोडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Saturn and Venus impact in everybody's life currently. So don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. Before we went on to the break, Prem ji was talking about the planetary position, the impact it is having on everybody's life, when they will turn around and change, which was Rahu and Jupiter. But time now from us to understand from Prem ji and explain to all the other viewers the impact of Saturn and Venus. So Prem ji, mera sawal hai that Saturn and Venus have changed. So what is the impact on everyone's life? जी, सैटर्न जो था पहले एक्वेरियस के अंदर था। पिछले सैटर्न मूव्स 2.5 years, 2.5 साल के लिए ढैया बोलते हैं। वो एक ज़ोडिएक साइन पे जाता है। देन आफ्टर 2.5 years फिर दैट मूव्स टू अ डिफरेंट ज़ोडिएक साइन। तो पहले शनि देव जो वो थे कुंभ राशि में थे, विच इज़ एक्वेरियस, Right. और मार्च से अभी वो मीन राशि में एंटर करेंगे। तो जैसे ही मीन राशि में उन्होंने एंटर किया था, उस वक्त राहु वाज आल्सो इन द मीन राशि in Pisces, and Rahu and Saturn stayed together from March to till May, which was a complete destruction and negativity. All kind of things happen in that too, because they both becomes very powerful when they are together. And but शनि जो है अब Pisces में आया तो गुरु शरण में आता है। तो जहाँ पे जाके सैटर्न बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, मतलब खुद भी अपने आप को क्योर करता है। एंड रिसेंटली अभी शनि ने अपना नक्षत्र भी चेंज किया, स्टार मूव्ड। सो नाउ द सैटर्न इज गोइंग टू गिव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द पीपल। सैटर्न इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट, फाइनेंशियल मार्केट। सैटर्न इज रिलेटेड टू अथॉरिटी एंड दैट। सो नाउ आने वाला जो टाइम, स्पेशली जुलाई के बाद से, व्हेन सैटर्न विल बी इन हिज फुल फॉर्म, जिसे कहते हैं ना, आप व्हेन यू मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट टेक्स टाइम टू बेसिकली टेक ओवर द थिंग्स ऑफ दैट। अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है, उसको 4-5 महीने लगते हैं अपने प्लान्स को एक्सिक्यूट करने के लिए, अपनी चीज़ों को, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों को दिखाने के लिए। तो अब शनि जाके जो है जुलाई के बाद से is started to give the positive impact to everybody. That's why things will start to change in the banking world में दिखेगा जी। शनि की वजह से लोगों की बिजनेस में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। Saturn also bring positivity as well to तो बहुत सारी चीज़ों में काम डाउन होना शुरू हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम जिन कुछ लोगों को 7.5 भी स्टार्ट हुई है, क्योंकि मीन राशि पे आया ऐसे। सो द पीपल हु हैज़ मून साइन, जिनका पाइसेस है, उनके लिए वो 7.5 है, तो उनको वो अपनी हेल्थ में, कार्मिक चीज़ों में जो सैटर्न की नेचर है वो करना शुरू कर देंगे। एंड वीनस हैज़ कम आउट फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम पाइसेस टू एरीज। पाइसेस में वीनस हो तो बेसिकली जुपिटर एंड वीनस दे आर एनिमीज। इट मीन्स द प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप्स।
आप किसी को भी, आप किसी की लाइफ में भी देखो, उसको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब वो एरीज में एंटर कर गया, मार्स में वीनस आता है, तो मैरिज जिन लोगों की नहीं हुई है उनकी शादियां होंगी, So positive result. पॉजिटिव रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल स्टार्ट टू कम आउट आफ्टर दिस। सो दिस इज ओवरऑल ए गुड टाइम फॉर वीनस एंड सैटर्न एंड स्पेशली फॉर द राहु। तो दिस इज नॉट ए कि अब ज़्यादा कोई नेगेटिव आगे आने वाला है। जो होना था वो हो चुका हो गया है, है। अब वो चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएंगी। So basically जैसे कहते हैं कि the elephant has left, just the tail is left behind. टेल इज लाइक Well, thank you, Premji, for explaining this. और दोस्तों, hope all of you have understood that the impact and the changes that the planets had is the power of that is coming down. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपको फाइनेंशियली जो है अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, बट इस वीक के अंदर थोड़ी एक्टिविटी कम रहेगी। जो भी आपको असाइन काम दिया जाएगा वो थोड़ा हार्ड होगा, प्रेशर बना रहेगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी चिंता में भी रहेंगे। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं वो सारी फुलफिल हो जाएंगी। आप प्लान करेंगे अपने टास्क को, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कंफर्ट भी रहेगा। आप फेस करेंगे बोथ एक्सपेंसेस एंड इनकम एट द सेम टाइम। थोड़ा टेक इट ईजी लीजिएगा, थोड़ा समय अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करिएगा। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, ये वीक जो है आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल है। फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे आप यू विल एबल टू अकम्प्लिश जो भी आपके गोल्स थे वो सारे उसको कर पाएंगे। हेल्थ थोड़ी आप लोगों की थोड़ी ख़राब रहेगी। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आप काफ़ी बिजी रहेंगे, बिजी एक्टिविटी रहेगी, लेकिन आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे अपने टैलेंट को, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलेगा। आपके स्किल्स और आपकी एबिलिटीज़ को हाईली अप्रिशिएट किया जाएगा। जो भी आपके सुपीरियर्स हैं, कि देयर आर चांसेस कि आपका नाम भी बड़ा हो सकता है इस वीक के अंदर। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शन। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। But before we go on to the break, if you feel you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. Prem ji has been in the studio explaining the impact of Rahu, Jupiter, Saturn, Venus, how these planets have managed to impact everyone's life because of the changes that happened in them. He's also mentioned that the changes are done. Now only the little bit tail end of it is left. So whatever people were going through a tough time, businesses were going through, a lot of other difficulties, everything will smoothen out. But time now for us to understand from Prem ji, because he's going to give the predictions. And now I'm going to take an email. So Prem ji, हमारे पास जो पहली email जो आई है, this is from Mr. AK, and this is from a concerned parent. His date of birth is Jan 26, 1985. Place of birth is Windsor, Ontario, Canada. Time of birth is about 1:31 in the afternoon. He does not have a job for almost 6 months, and according to his horoscope, what would you recommend would be the right time for him to find a job? Due to that, he's under a lot of pressure because he's unable to support his family, and he's also not sure whether he should start a business, which is what he wants to do. So do you think that not having a job could also impact his health, or should he get into a business? Which aspect would be healthy for him, successful for him, and financially stable for him? देखिए मिस्टर ए के, अगर आप जनवरी 26, 1985, इनका विंजर ओंटारियो 1:31 PM का बर्थ है। ये टॉरस राइजिंग है और मून साइन इनका पाइसेस है, वृषभ लगन है और मीन राशि है इनकी। वृषभ लगन का लॉर्ड होता है शुक्र, राशि का लॉर्ड है गुरु। दशा इनको चल रही है वीनस की, जो कि 2008 से लेके 2028 तक है। एंड ही ऑल्सो जस्ट स्टार्टेड है 7.5 एज वेल टू बिकॉज इनका मून साइन पाइसेस है। अब जन्मपत्री में इनके काल सर्प दोष भी है। राहु इज इन द फर्स्ट हाउस और केतु इज इन द 7th, और शनि 7 में बैठा हुआ है केतु के साथ। वीनस पाइसेस में है, इनकम के एरिया में है, वहाँ पे मार्स भी है और मून भी है। पाइसेस में मून एंड मार्स दोनों बहुत स्ट्रांग होते हैं,
क्योंकि वहाँ पे जुपिटर उनको सपोर्ट करता है। Right. बट वीनस को वो तीनों नहीं सपोर्ट करते बिकॉज बोथ थ्रीज आर एनिमी। तो 11th हाउस इज योर हाउस ऑफ इनकम। सो व्हेन यू हैव योर ओन मास्टर प्लैनेट सिटिंग देयर इट मींस इट्स सपोज्ड टू बी ए राजयोग। लेकिन बिकॉज ऑफ वो किस साइन में बैठा हुआ है और साथ में एनिमी बैठे हुए हैं, तो इसलिए इनकी इनकम कभी स्टेबल हुई ही नहीं लाइफ के अंदर। I see. एंड अनफॉर्चुनेटली अब शुक्र दशा 2028 तक है और इस पीरियड में तो इनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड होना चाहिए था, लेकिन इनके पास काम ही नहीं है। पाइसिस में वीनस है तो इट मीन्स यू वोंट डू ए जॉब, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आपकी लाइफ में बिजनेस लिखा हुआ है जो इनको करना चाहिए और इनको साढ़े सती को अपने करेक्ट करना चाहिए और काल सर्प दोष को करना चाहिए, ताकि ये अपने करियर, अपनी जो बिजनेस को, लाइफ में उनको अच्छे से मोनेटाइज कर पाए। So then, Premji, what would you recommend as remedies and any stones that you think he needs to wear? देखिए, पहले तो वीनस इनका राइजिंग लॉर्ड है, तो वीनस इज रिलेटेड टू बेसिकली रियल एस्टेट बिजनेस, वीनस इज रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी, food and beverages. Venus is related to basically, when you do event management, those kind of things well too. Right. And Venus is also, you can also become a sort of a sometime mortgage broker to middleman बन जाते हैं। लेकिन इनको जो है खुद का काम करना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए। देखिए, काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए जिस दिन मंडे के दिन अमावस होती है, सोमवती अमावस के दिन, जिससे इनका बेसिकली ये दोष हट जाए। एंड डायमंड पहन के रखना चाहिए, 1 कैरेट का प्रिंसेस कट अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, उसको फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, तो जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो इनका बेटर हो जाएगा। साढ़े सती चल रही है तो सैटरडे के दिन इनको मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखते रहना चाहिए, उसमें अपना चेहरा देख के, फिर उसमें ऑयल डाल के अपना चेहरा देख के, फिर उसमें एक क्लोव डाल के उसको किसी बार किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दिया जाए, तो जिससे जो शनि छाया है वो इनकी हट जाएगी। तो ये सब करने के बाद इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, देन ही कैन एबल टू डू, जो बिजनेस में जाएं तो बहुत बड़ा सक्सेस है। Wonderful. Thank you, Premji. So Premji is advising that, job is not the right field for him. He needs to get into some kind of business, food, beverage, or something that, interests him. He also needs to start wearing a diamond, which needs to be uncut, untreated, unheated stone, and a beautiful, pure, good quality. He can wear it and he needs to do a small mantra. Try and stay vegetarian on the day he wears it. Along with that, he also needs to do Kalp Sarp Dosh ki puja and the mustard oil remedy that Premji has mentioned. And you will see that he'll flourish and he'll do very well in the business that he starts. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? Sagittarius यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आपको पैसे में नुकसान हो सकता है इस वीक के अंदर, तो अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा ट्रैक करके रखिएगा। किसी के साथ आर्गूमेंट मत करिएगा, खास करके अपने कोलीग्स के साथ अपने आप को काम बना के रखिएगा। फाइनेंशियली आप लोगों के लिए थोड़ा अनस्टेबल वीक है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी काम और आपकी पर्सनल लाइफ में आएंगी इस वीक के अंदर, तो ट्राई टू सबके साथ कम्युनिकेट करके रखिएगा, ताकि एक्सप्लेन करिएगा अपने आप को बेटर, अपने आप को थोड़ा काम डाउन बना के रखिएगा, और ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर भी बना रहेगा, तो एट द सेम टाइम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, मनी फ्रंट को लेके वीक में इतना अच्छा नहीं है, थोड़ी डिफ़िकल्टी रहेगी मेंटेन करना स्टेबिलिटी और अपनी रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करने के समय। चैलेंजेस आएंगे बट आप ओवरऑल काफ़ी स्ट्रांग बने रहेंगे। थोड़ा समय अपनी फैमिली के साथ भी बिताइएगा। पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर थोड़े से फाइनेंशियल स्ट्रेस बना रहेगा, तो अपने पैसे को एसेंशियल चीज़ों के ऊपर ही खर्चा करिएगा। थोड़ा क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताइएगा, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। हेल्थ आप लोगों की एवरेज बनी रहेगी। Thank you, Premji. You came to the show, help all the viewers understand the impact of the planets Rahu, Jupiter, Saturn, and Venus all over the world. It has been quite a turmoil for a lot of people, health-wise, business-wise, financial-wise, banking-wise, property-wise. Premji is suggesting that, the impact is only going to lessen down now, and people are going to see much better results all over for everyone. However, if you have any questions related to our show for today, or you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net.
This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.